Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me everyone. And this one is going to be a pick a card reading for what 2023 wants to tell you. तो अगर 2023 we are in the last month of 2023 December और अगर ये साल आपसे बात कर सकता तो ये क्या बोलता आपको. तो this is the pick a card that we are going to do today. Let's see what all things comes up for you guys. Okay, so for this we will have three options with these three stones. You can choose the stone that you feel really drawn to. This one is amethyst, this is aquamarine and this is clear quartz. तो जो भी stone आपको attract कर रहा है आप choose कर सकते हैं. And then let's see what message 2023, the year which is going to go soon, what this year wants to tell you. This could be different things for different people, but let's see what all things is coming up, showing up for you. So with that, you can pause the video if you have still not selected your crystal, but let's get started with the guidance. Okay, so let me get started with amethyst, and I'll keep these two stones here. And let's see what all the people जिन्होंने भी amethyst choose किया है. चलिए देखते हैं 2023 आपसे क्या बात करना चाहता है, आपको क्या कुछ बताना चाहता है. So we will get started with this theme first and see. I'll be using this card for all the options. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Bali, my dear friend, is Spirit of all my God Angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the people who chose the first amethyst stone. What 2023 year wants to tell them, talk to them about. Thank you for the guidance coming for all the people who selected amethyst. 2023 उनसे क्या बात करना चाहता है. Justice. Stick to your truth and everything will turn out just fine. Okay, so 2023 wants to tell you that back of the deck में देख लेते हैं. You are at the crossroads. Okay, so 2023 wants to tell you guys कि yes, this year had been quite indecisive. काफ़ी confusion से शायद भरा हुआ ये साल होगा आपके लिए. This year could have been a very important year of your life in terms of deciding something. बोलते हैं ना कि जैसे कि ये साल आपको उस दोराहे पे लेके आया हुआ होगा. You would have found yourself on that crossroads where it was important for you to decide whether you want to go this way or that way. You were very confused. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं, लेकिन एक decisive मोड़ पे 2023 आपको लेके आया है, या लेके आया हुआ होगा. और wake up, what is that you truly want. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एक वर्ड दोनों ही कार्ड्स में आपके रिपीट हुआ है, truly want, एंड यहाँ पे क्या है, stick to what you truly want. Stick to your truth, and यहाँ पे what you truly want. तो there is a कश्मकश, there is a doldrums कि should I go for what makes sense, which is politically right, which others are guiding me कि, and of course they are our well wishers और सब अपने हिसाब से हमें सही ही guidance देते हैं. But then this is one aspect and the another aspect is your own internal truth, जिसका कोई proof आपको सामने में नहीं दिखता है कि ये सही है. काफ़ी ज़्यादा, I mean it's the voice of your inner, it is the meek whisper of your inner voice, which is also your intuition, which has no proof, because understand, intuition is intuition and logic is logic. It has no proof, but it feels right. So in short, यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है. और काफ़ी हो सकता है कि आप अभी तक आपने डिसीजन
नहीं लिया हो, तो यहां पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि again it is giving you a nudge in the right direction कि go with what feels right within. And if you watch that watch Sumbul and Fahman का guidance, तो Sumbul का guidance भी यही है, get in touch with your inner voice and do what feels right within, get in touch with your inner wisdom, right? तो यहाँ पे भी अगर आपने डिसीजन ले लिया है और उस रास्ते पे आप चल पड़े हो, और जब भी आप कहीं नए रास्ते पे जाओगे तो यू विल डेफिनेटली फेस lot of obstacles. Why? Because it is a new rasta. You don't know, you're not familiar with it. You will get familiar with it as you start walking on that. So roadblocks, difficulties, ups and downs are very natural. इसीलिए बोला जा रहा है stick to what you have chosen. If you followed your heart and you chose something, then stick to it. You will get the justice after you have gone through your trials and tribulations, ups and downs. अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो भी आप अपने इनर वॉइस की सुन के डिसीजन लीजिए, बिकॉज दैट इज वॉट इज राइट फॉर यू, दैट इज द राइट पाथ फॉर यू. इवन इफ इट इज स्लो, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, इट इज द राइट पाथ, एंड एट द एंड इट विल ऑल be worth it, because you are going to get justice, balance is going to come in your life, you will get what you always wanted. Okay, तो ये है आपका थीम 2023 के लिए. तो what does the year 2023 wants to tell you? It wants to tell you that if you are confused, listen to your inner voice. That is where your rainbow, और the बोलते हैं ना कि proverbial golden pot at the end of the rainbow will wait for you. और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है and you are having second thoughts कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया है, so do remember that you are just going through your initial hiccups of the journey and you are on the right path, because on this path, when you are sticking to your own truth, justice is going to be yours. So 2023 is the year that wants to tell you guys this. Isn't this beautiful? Okay. Amethyst is also about protection. Protected. Even if you feel you are not protected, you are confused, you are lost, you feel that there is a sea there and you don't know where to go, you feel lost, don't know where to go, and Amethyst is here, the Justice card is here to tell you that you are protected nevertheless. Okay, so let's see, let's break this down. What is coming up for pile, or rather stone, amethyst crystal? Okay, so we have the card sad squirrel. Oh, Seven of Pentacles, tired of working hard, and this one wants to come out, guys. Wow, do you see this? Nine of Pentacles, your crowning glory moment, guys. Justice. Let's see what is the Ace of Cup. ठीक है. ऑल राइट, थोड़ा सा इसको ऊपर पुश करते हैं ताकि आप सारे कार्ड्स को देख पाओ अच्छे से. आपका कार्ड यहाँ पे क्रिस्टल रख देते हैं. आर यू एबल टू सी ऑल योर कार्ड्स? आई थिंक सो. ऑल राइट, देखो एस ऑफ कप इन रिवर्स है यहाँ पे, तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ तो आप अपने दिल का स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन शायद अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है. इट्स मोर लाइक कि आप अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना. हु इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड इज समबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज एट द टॉप ऑफ हर गेम्स, शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज फिल्ड विथ एनर्जी, पैशन. वो जो अपना चाहती है, जिस चीज पे बिलीव करती है, पैशनेट है, शी विल चेज दैट. बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी तक आपने इस अपने दिल की नहीं सुनी है शायद. ओके, और दिल की नहीं सुन के आप ये न्यू बिगिनिंग की तरफ शायद नहीं जा रहे हो, इवन दो यू हैव ऑल दैट इट टेक्स टू स्टार्ट दिस न्यू बिगिनिंग. कहीं ना कहीं आपने इस न्यू बिगिनिंग को दबा के रखा हुआ है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. 2023 ये बोल रहा है आपसे. ओके, तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए हो तो शायद वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप डिसीजन, दिस ईयर यू शुड हैव आइडियली टेकन द डिसीजन, बट इफ यू हैव नॉट टेकन द डिसीजन, 2023 इज टेलिंग यू buck up. Okay,
take this decision. Don't let another year 2024 pass by. Take your decision. Justice is going to be yours, but not till you take that baby step towards it. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ये बात. 2023 is acknowledging कि आप पूरे 2023 confused रहे हो, and I also see grey clouds, grey sea and the sad squirrel. तो 2023 again is acknowledging कि ये साल वो आपको नहीं दे पाया जो वो शायद चाहता था, जस्टिस जो वो चाहता था, क्योंकि हम जब तक अपनी एनर्जी को पुट आउट नहीं करते यूनिवर्स से, वी कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ एनर्जी बैक फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स विल टेक दिस एनर्जी एंड गिव यू समथिंग दैट इन रिटर्न. तो जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी है, जैसे कि वेव्स भी स्टैग्नेंट है, तो आप वो एनर्जी यूनिवर्स में नहीं डाल रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आप जो चाहते हो वो नहीं दे सकता है ना. दिस इज जस्ट लॉ. इट्स नॉट दैट यूनिवर्स इज नॉट लविंग यू, इज नॉट वर्किंग फॉर यू, बट इट्स जस्ट दैट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि आप स्टैग्नेंट खड़े हो, आंख पे पट्टी है आपके. तो 2023 एक्नॉलेज कर रहा है कि शायद पूरे साल 2023 ने आपको बहुत दुखी देखा है. सैड स्क्विरल का कार्ड है. अगेन दिस डेक हैज टू एक्स्ट्रा कार्ड्स, द सैड एंड द हैप्पी स्क्विरल. तो शायद 2023 मोस्ट ऑफ द ईयर हैड बीन काफी, आई मीन इट हैड बीन नॉट वेरी, बोलते हैं ना कि बहुत खुशी वाला साल नहीं था. लाइक ओके सो साल था. More like, you know, you've been waiting for something to happen. Excuse me. But yes, 2023 acknowledge कर रहा है कि you have been very sad this year. और what else? Seven of Pentacles, आपने काफी मेहनत भी की किसी चीज पे, बट क्योंकि what I am seeing is that this person is very sad and tired of all the efforts. तो जितना आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला. तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें शायद कर रहे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हैं. एंड इवन दो यू कीप वर्किंग ऑन इट, माने कि कुछ ऐसी चीज़ पे काम करना जो शायद अलाइंड नहीं है, और बहुत मेहनत करना और टायर्ड फील करना एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज you're not happy and you're not getting the results, maybe not happy with the results, not happy with where you are. But interestingly enough 2023 बोल रहा है 9 of Pentacles. तो 2023 आपको बोल रहा है कि अगर आपने किसी चीज पे मेहनत की है तो देखो दो चीज है, या तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है और वो नया रास्ता इन अलाइनमेंट विथ योर ट्रूथ स्टार्ट कर दिया है, तो यू आर फेसिंग इनिशियल हिकअप्स जहां पे आप मेहनत कर रहे हो. शायद अभी तक आपने पूरा रिजल्ट उस मेहनत का नहीं देखा है, बट 2023 आपको बता रहा है कि योर 9 of Pentacles मोमेंट इज गोइंग टू कम सून. यानी कि जितना भी आप 9 of Pentacles क्या होता है, जब आपने काफी मेहनत करके किसी चीज को फाइनली अर्न कर लिया है, यू आर इन द सेल्फ एम्पावर्ड मोड आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन. यहाँ पे आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, बट शायद अभी, क्योंकि प्रेजेंट का कार्ड मान सकते हैं इसको हम, अभी आपको जितना भी आपने मेहनत किया उसका रिजल्ट आप नहीं देख रहे हो. लेकिन यही आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने जेन्युइन एफर्ट डाला है, जेन्युइन चीजें की हैं, तो नोबडी कैन टेक अवे योर जस्टिस. एंड दिस इज द 9 of Pentacles, योर क्राउनिंग ग्लोरिंग मोमेंट, जो कि हो सकता है आप अभी देख नहीं पा रहे हो. आपने बस अभी एफर्ट डाला है, रिजल्ट शायद नहीं दिख रहा है, बट अगर आपने डिसीजन लेके एफर्ट्स लिए हैं, रास्ता चूज किया है, मेहनत किया है, तो आपका क्राउनिंग ग्लोरिंग मोमेंट आने ही वाला है. 2023 आपको ये बताना चाह रहा है. ओके, उसने ये भी देखा है कि काफी सैड थे आप इस साल, मेहनत भी की है और मेहनत का रिजल्ट अब आने ही वाला है. दूसरी बात यह है कि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो अपने इंट्यूशन की सुन के, अपने इनर ट्रुथ को सुन के आप उस डायरेक्शन में डिसीजन लीजिए. You surely will get the justice. और ये सब चीजें हमें पता चल रहा है. Okay, so what else can we do? Give me a moment. All right, guys. So let's take a final word from 2023 for you, the year that is going to soon bid us by. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. तो यहाँ पे सैडनेस है. सैडनेस में वी आर मोर थिंकिंग मोड में है, वरी मोड में है, स्ट्रेस में है.
और क्योंकि हम फ्यूचर का सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या करना सही होगा. वी आर वेरी विजिलेंट एंड वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं. और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बिलीव दैट थिंग्स विल हैपन फॉर यू, बिलीव दैट जस्टिस इज योर, बिलीव दैट जितना भी आपने मेहनत किया है ना, यू विल सी योर क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट, यू विल शाइन योर लाइट, you will be empowered. So when I lean on the faith of the universe, peace becomes real. और यही शायद मैंने आपको explain भी किया ना, कि universe is always working for you. So believe that universe is working for you. Justice का card, 9 of Pentacles का card, and this, there is only faith, that is believe that you will make it, which is, you know, stopping you from being there. So continue to have faith. This is what I am love and miracles are natural for me. I create mindful moments throughout the day reminding myself that I am love and miracles are natural for me. तो ये आपके सैडनेस के लिए है. Instead of being in this worry, stress, overthinking about future, overthinking कि things can always go wrong, universe is telling you to be in the vibration of faith that universe is working for you. अगर लेट भी हो रहा है तो there is a purpose behind it. वहां पे आपको कुछ सीखना है, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और जब आप वो सीख लेंगे यूनिवर्स विल मूव यू फॉरवर्ड. सो इंस्टेड ऑफ वरीइंग, आप अपने आप पे फेथ रखो, बिलीव इन मिराकल्स. तो यूनिवर्स यही आपको बोलने की कोशिश कर रहा है. इंपॉर्टेंटली 2023 आपसे ये बोलना चाह रहा है. तो डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस रीडिंग इफ इट हेल्प्स यू. Did what 2023 talk to you, make sense, resonates? Do let me know your thoughts, guys, and please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you in the next video. Bye. Hello everybody, जिन्होंने भी एक्वामरीन चूज किया है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स और रादर 2023 आपसे क्या कुछ बोलना चाहता है. Let's see what the year 2023 wants to tell you, talk to you about. Let's see. Aquamarine, all the people who chose Aquamarine, let's see what is coming for you guys. 2023, what 2023 wants to tell you. Isn't it interesting if the year could talk to you about, how you guys spent this time together? The year knows everything. What if year could talk to you? Aquamarine, let's see. Okay, so let's see. I got 2 cards. 5 of Cups, sadness. Spilled tea isn't the end of the world. Okay, and what else you have? 4 of Swords. Okay. Back of the deck में मैं देख लूंगी कि क्या है. King of Cups. King of Cups is all about getting yourself composed before you respond. Okay. King of Cups, 5 of Cups. क्या बोला जा रहा है? 5 of Cups and 4 of Swords. Alright guys, so 5 of Cups से तो definitely 2023 wants to tell you that कुछ चीज़ें ऐसी disappointing हुई इस साल जो कि it created a lot of sadness in your life. जैसे कि maybe a lost opportunity, कुछ चीज़ शायद आपने खो दिया, या फिर कुछ there is something that kind of you consider that to be a lost opportunity, as if you have lost that forever and you feel very sad for that. तो 2023 जो है ना, ये चीज़ acknowledge कर रहा है कि कुछ चीज़ें शायद लाइफ में ऐसी हुई होंगी जिसका आपको काफ़ी अफसोस है, और आपको ऐसा लगा जैसे कि you lost it. But 5 of Cups is also a card जहाँ पे क्या है कि हम
सैडनेस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस है, और जो चीज़ हमारे पास है ना उसको हम बिल्कुल भूल गए हैं। यानी कि स्टिल देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस क्लाउड दैट यू सी। तो 2023 आपको ये बताना चाह रहा है कि यस, लॉस तो शायद हुआ होगा, लेकिन नॉट एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। यू स्टिल हैव समथिंग, यू स्टिल हैड समथिंग, एंड यू स्टिल हैव समथिंग जिस पे आप फोकस कर सकते हो। और वाई आरंट यू रेस्टिंग? ओके, शायद आप काफी ज्यादा परेशान थे, किसी चीज के बारे में सोच के परेशान थे। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट यू काइंड ऑफ यू वर इनटू दिस समथिंग रिलेटेड विथ कोल्ड वेदर। मे बी आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं रहती होगी, और आप अपने अपने तबीयत का ख्याल ठीक से नहीं रखते होंगे। समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड इट्स लाइक कि व्हाई वर यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? यू वर प्रॉबली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन समथिंग, और 2023 आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको अपना ज़्यादा केयर करना चाहिए था, अपना देखभाल करना चाहिए था, अपने आप को थोड़ी हीलिंग देनी चाहिए थी। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग, रिक्यूपरेशन, टेकिंग अ ब्रेक एंड री एनर्जाइजिंग योर सेल्फ, थोड़ा सा सेल्फ केयर करने का। पर आप वो क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी चीज़ है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज़ का लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, सैडनेस, आप रेस्ट नहीं ले रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको 2023 बोलना चाह रहा है। अब चलिए देखते हैं, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for all the people who chose aquamarine. What is that 2023 wants to talk to them about, wants to tell them about? क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? Ace of Pentacles. Okay, Page of Cups, and we have the 8 of Wands. All right, King of Sword भी है रिवर्स में, King of Cups भी है रिवर्स्ड में। क्या कुछ बोलना चाह रहा है 2023 आपसे? ऑलराइट, ओके, सो शायद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये साल आपके लिए शायद कोई अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, विच इज लाइक समथिंग सम अपॉर्चुनिटी विच माइट हैव कम योर वे। बट पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देखो, जैसे कि इसके हाथ में ये कप है पर ये उल्टा हो गया है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी इसके हाथ में क्या है, कॉइन है। यानी कि ये साल आपको बोलना चाह रहा है कि मे बी देयर वाज सम, कुछ कॉइन आपको मिला होगा, कुछ पैसे मिले होंगे, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आया होगा, कुछ फाइनेंस आया होगा, जो कि शायद आपको लगता है, या फिर क्योंकि आपने यहाँ पे क्या है, यू फीलिंग द लॉस, तो शायद जो भी अपॉर्चुनिटी आई उसको आप ठीक से कैश नहीं कर पाए, या फिर उसका ठीक से पोटेंशियल आपने कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उसको अच्छे से नर्चर नहीं कर पाया, समथिंग लाइक दैट, द सेम एनर्जी ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, वो हाथ से निकल गई, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसका आपको काफी अफसोस भी है। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जैसे कि एक बार जैसे कि कोई चीज स्टार्ट हुई, एक नया गुड लक आया, कुछ नई चीज स्टार्ट हुई, लेकिन वो ठीक से आगे बढ़ नहीं पाया, जैसे कि आप उसको शायद संभाल नहीं पाए, या फिर कुछ इस तरह की चीजें हो गई। और 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि उसके बाद चीजें ठीक जगह पे फॉल नहीं की, यानी कि थिंग्स वर नॉट फॉलिंग इन प्लेस आफ्टर दैट, इवन दो समथिंग न्यू हैपेंड इन योर लाइफ, बट समहाउ इट कुछ ठीक नहीं हुआ वहां पे, ठीक से हम उसको संभाल नहीं पाए, कप उल्टा हो गया, हाथ से फिसल गया, टूट गया, एंड देन उसका आपको काफी अफसोस हुआ, आप काफी मोर्निंग में भी है उससे। आप आई थिंक जो भी चीज आपने लॉस किया ना, उसके कारण आपके हेल्थ पे काफी असर पड़ गया, और आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचने भी लगे हो, एंड यू नो देयर इज अ विंटर फीलिंग टू दिस थिंग। और उसके बाद ये भी लग रहा है कि उसके बाद से चीजें जैसे कि ठीक नहीं हुई, क्यों, काइंड ऑफ इट्स अ डाउन हिल सिंस देन। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात किया है कि आप एक बार जो एक चीजें थोड़ी सी
संभली नहीं, तो बिल्कुल आप उस पर ही फोकस हो गए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सुबह में हमें 2-3 छोटी छोटी चीजें बिगड़ जाती हैं और वो हमारा पूरा अटेंशन खींच लेती हैं, तो क्या होता है कि हम अपने लो वाइब्रेशन में टोटली चले जाते हैं और जो 10 चीज अच्छी हो रही है लाइफ में उसको भूल के वो 2 चीज जो ठीक नहीं हो रही है उसी पे हमारा फोकस रहता है और थ्रू आउट फोकस रहता है, जो कि हमारे पूरे वाइब्रेशन को नीचे करके हमारा फोकस लेके हमारी पूरी एनर्जी को लो कर देती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। इवन दो दिस इज अ 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो कि चीजों को उठा सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि हमने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पे ही ज्यादा फोकस किया और यहाँ पे जो स्टिल चीजें थी हमारे लिए जिसपे हम फोकस कर सकते थे, हम उस पर फोकस नहीं किया। तो इवन तो हम इस चीज को उठा सकते थे ना, हम उठा नहीं पाए और इट्स लाइक डाउन हिल चलता चला गया। उसके कारण हम क्या हुआ, हमारे इमोशंस भी हमारे हमारे इमोशंस जो कि किंग ऑफ सोड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यू आर मास्टर ऑफ योर गेम, यू हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर गेम। यहाँ पे भी देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, द सेम कार्ड वेयर थिंग्स वर लाइक, अगर आप अपनी इस एनर्जी को ठीक कर लेते ना, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यानी कि 2 किंग्स की एनर्जी है जिसको आपने अच्छे से यूज नहीं किया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो उसके कारण से एक लॉस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया है। ये चीजें बोली जा रही हैं आपको, किंग ऑफ कप्स ये साल आपको यही बोल रहा है। नेवरदलेस चलिए, ये दिस इज आई थिंक व्हाट कुड हैव हैपेंड इन योर लाइफ। लेट्स सी। Okay, this really wants to come out. When I lean towards love, I am led. जैसे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, I am led, यानी कि आपको जो स्पीड मिली थी ना, एक अपॉर्चुनिटी के साथ, एक अपॉर्चुनिटी आया था, एक कोई न्यू चीज आई थी लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं हम ठीक से संभाल नहीं पाए या फिर ऊपर नीचे हो गया, पर वो चीज को हमने ज्यादा फोकस कर दिया इंस्टेड ऑफ कि अपने आप पे विश्वास रखें और यूनिवर्स पे भी विश्वास रखें कि यस, कोई नई चीज आती है तो डाउन फेज आएगा ही, क्योंकि वी आर जस्ट गेटिंग यूज टू इट। अप एंड डाउन करते करते हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं और आगे उठते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यस, इवन दो थिंग्स नीचे गई थी तो आपको विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए था, वो ऊपर उड़ता, वो जो फ्लाइट है वो नीचे आती, ऊपर नीचे आते करते ऊपर जाती। तो वो चीज बोल रही है, वो चीज बोला जा रहा है आपको, 2023 आपको ये बता रहा है। तो अगेन आपको बोला जा रहा है, इंस्टेड ऑफ वरिंग सो मच कि ये ठीक से, see, this is very important here. This is something that I heard in one of the motivational videos from J.K. Rowling, the writer of Harry Potter. I mean, probably you know her. She was a single mother and she struggled a lot before, and she was before she became a phenomenon. तो उसके पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था और उस she was giving this she was addressing, I think, Stanford University graduation day or some such place, जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि sometimes we are so scared of failures that we forget to live our life. और यहाँ पे यही हो रहा है, you have an opportunity but you are so scared of things not going wrong that when it went wrong you were like it will not go up. ठीक है, तो इट्स लाइक कि बी रोबस्ट विथ, rather enjoy things what you have, rather than being so scared of it can fall down. जो भी चीज आपको कप में मिली है, यहाँ पे भी आपके हाथ में कुछ है, यहाँ पे भी आपके कप में कुछ है, यानी कि डेफिनेटली आपको कुछ मिला था, बट यू वर सो स्केयर्ड ऑफ एंजॉइंग एंड टेकिंग योर ओन enjoying with it कि एक बार वो गिरा तो then it was like going down. So lead on love towards and you will be led. ये आपको बोला जा रहा है। और एक यहाँ पे लंबा सा मैसेज भी है, let me read this for you. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Exactly, the fear, the fear कि things will go wrong, और आपको उसके beyond देखना है, right? क्योंकि अगर हमारे दिमाग में बस फियर है कि ये गिर जाएगा, तो क्या होता है, अनकॉन्शियसली हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो सही चीज भी क्या हो रहा है कि हमारे वाइब्रेशन के कारण गलत हो रही है, नीचे जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपैंडिंग माई परसेप्शंस सो दैट आई कैन सी वॉट इज ऑफ हाइएस्ट गुड।
ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमें फियर को एड्रेस करना है, फियर को हमको रिप्लेस करना है लव से, एंड देन यू विल बी लेड। ये गाइडेंस आ रहा है, एंड बिलीव इन मिरेकल्स, हैव होप। तो ये आपका गाइडेंस है पाइल नंबर 2, ऑल दोज हु सिलेक्टेड aquamarine. Do let me know if it resonates. This is what 2023 wants to tell you guys. Okay, thank you for watching, and do let me know if this resonates, and I will see you again in another reading. If you like the reading, please like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you are notified every single time I upload the video, and I will see you in the next video. Bye. Hello all the people who chose the crystal clear quartz. Let's see what 2023 wants to tell you, what she wants to talk to you about. क्या बातें यहाँ पे होंगी, चलिए देखते हैं. I think this wants to come out really. 5 of Wands, and this is a good coven. Let's every witch have a day. Okay, 5 of Wands, and यहाँ पे क्या कार्ड आया है हमें? The Emperor. All right, so this is the card that we have got. This is at the back of the deck, and this is the present energy. तो overall theme आपके 2023 का, जो 2023 आपसे बात करना चाह रहा है, वो ये है. Now let's try to understand things. एक बात जो what I'm picking up is कि 2023 आपसे ये बताना चाह रहा है कि आप में एक एम्परर की एनर्जी है जो कि आप छुपा के रखे हो. You should bring it out, क्योंकि ये आपके बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. So there is a emperor energy in you. There is a, you command certain kind of authority by your personality. जो भी आपने लाइफ में सीखा है, जो भी चीज है, वो एम्परर वाली पोजीशन है आपकी. That means you have a lot of maturity, lot of knowledge, a lot of wisdom to guide others. तो आपकी एम्परर वाली एनर्जी है जो कि शायद आप हाइड करके रखते हैं. Okay, let's read this card. Being the authority of your own life comes with a lot of responsibility, and more like, taking responsibility of things, making that first move, believing in yourself, believing in your power. Okay, 5 of Wands. यहाँ पे अगर मैसेज भी हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, एंड हर लोग अपना बात करने की कोशिश कर रहा है. हर एक इंसान अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है और कोई दूसरी की बात समझ नहीं रहा है. तो एक तरह का केयर, थोड़ा सा नथिंग लाइक वेरी विशियस, बट 2023 probably could have been a year where there was a lot of drama of other people, there was little chaos. हर कोई अपनी बात कर रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है. इस तरह की एनर्जी होगी 2023 की आपकी. और जब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योस है, तो यहाँ पे क्या जरूरत होता है, एक एम्परर की एनर्जी का आना हमें क्या बता रहा है कि यस, यू शुड हैव टैप्ड इनटू योर एम्परर एनर्जी एंड स्ट्रीमलाइंड दिस क्योस. यू अंडरस्टैंड? स्ट्रीमलाइंड दिस पीपल, गाइडेड देम थ्रू योर विजन, थ्रू देयर विजडम. तो काफी क्योस, बिजी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. एक देयर इज नो स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ थिंग्स, देयर इज नो स्ट्रक्चर. जो मन है, जो जिसका करने का वो कर रहा है, और शायद कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है. तो यहाँ पे 2023 शायद आपको ये बोल रहा है कि यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द पावर, नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, शायद हर चीज टू मेक दिस योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी. जो भी क्योस था लाइफ में, या लोग बात नहीं सुन रहे हैं, कमोशन है, ये है, वो है, जो भी है, तो आपके पास वो क्वालिटी था जिसको आपने दबा के रखा, छुपा के रखा. उसको यूज करके आप इसको स्ट्रीमलाइन करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद आप बना सकते थे. लेकिन दिस इज व्हाट 2023 इज रियली टेलिंग यू. नाउ लेट्स सी व्हाट मोर डिटेल्स वी गेट फॉर योर 2023 रीडिंग. 2023 आपको और क्या कुछ बताना चाहता है, क्या डिटेल्स? ओके, किंग ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली. थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी. The star card. Yeah, this could have been a great opportunity for you, but looks like
You didn't use your King of Sword energy, power, strategy, mental strength to really make it happen. Ten of Pentacles in reverse. The Hermit का card. Nine of Sword काफी माइंड में. Ten of Pentacles कैसी एनर्जी थी? More like, using your mental power, your strategies, your intellect, जो कि आप में है, to make this chaos a great opportunity for you. More like, जैसे कि यहाँ पे है ना, सब अपनी बीन बजा रहे हैं, सब अपना बात कर रहे हैं, तो you had all the powers to streamline this. जैसे कि बोलते हैं ना कि this in this Five of Wands में क्या है ना कि सब अपनी बात पे फोकस कर रहे हैं. And you, with your skills and your nurturing capacity as well, with your intellect and with your power of words also, आप इन सारे लोगों को सेम पेज पे ला सकते थे और एक अच्छे से उनको समझा सकते थे. एक बहुत ही अच्छा alchemy हो सकता था जहाँ पे you could have created this absolute magic. With Star is all about magic, right? Believing in things magically happening. You could have created that seamless, you could have turned that chaos into that seamless bonding in the family. शायद हो सकता है कि फैमिली में कुछ अनबन हो रही होगी, मिसअलाइनमेंट हो रही होगी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे ना, ये सारी चीजें हो रही होंगी. तो बट आप में वो पावर था कि आप सबको समझा सकते थे, ये सब चीज कर सकते थे. बट शायद वो नहीं हो पाया है. क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं. आप अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान रहे हैं. आप अपने इंटेलेक्ट को, स्ट्रैटेजीज को, प्लानिंग को, पावर ऑफ योर वर्ड्स को नहीं समझ रहे हो. और जब आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे? तो यू शुड एक्चुअली ब्रिंग इट आउट. आई थिंक दिस इज व्हाट द मैसेज इज फॉर यू 2023 का. ओके ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने मुंह बंद किया हुआ था. यू आर नॉट स्पीकिंग. देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम्स. स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट योर ड्रीम कम ट्रू. You need to know that your dreams are being supported. This is what 2023 wants to tell you. When I am in alignment with love of the universe, peace cannot be disrupted. It's like, alignment with universe. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Below the triggers. Below the triggers. The healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. More like, tapping into your emperor energy, right? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे chaos है, conflict है, drama है, competition है, but you don't have to participate in that, okay? क्योंकि आप एम्परर हैं, किंग ऑफ सोर्ड हैं. द किंग ऑफ सोर्ड कमांड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी बिकॉज ही कैन स्ट्रीमलाइन थिंग्स. तो आपको इनके बीच में पढ़ के उनके जैसा नहीं बनना है. यू अंडरस्टैंड? बट आपने शायद क्या किया, 2023 probably wants to tell you this, कि ये जो यहाँ पे कमोशन चल रहा था, कॉम्पिटिशन ड्रामा चल रहा था ना, आप उसमें पार्टिसिपेंट बन गए. Why? Because you allowed your triggers to get the better of you. लेकिन अगर आप अपने आप को हील करें,
जो कि स्टार का कार्ड बोलता भी है कि अगर आप अपने वूंड्स को हील करें तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप अपने एम्परर एनर्जी को देख पाएंगे एंड यू विल नॉट गेट or become a part of this commotion and drama. Rather, you will tap into your emperor energy and you will lead the drama to a peaceful resolution. आप समझ रहे हो, यहाँ पे फैमिली में शायद कुछ ड्रामा हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ कि अगेन maybe you were drawn to pile number 2 because it has some similar kind of energies, जहाँ पे it was like, you know, you just probably allowed your triggers to get the better of you. Now we all are imperfect people. There's nothing, you know, we can always have compassion for ourselves, understanding for ourselves, knowing कि we are all imperfect beings और हम फिर से अपना वो काम कर सकते हैं. तो शायद थोड़ा सा आप खुद को भी फील कर रहे होगी कि नहीं यार, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था. I should have been more responsible, more mature, but this commotion, drama, competition, show off kind of got the better of you और थोड़ा सा आप शायद बह गए भावनाओं में. But other than that, I think you have all the capabilities to not participate in this drama, rise above this drama and lead this drama to a peaceful resolution. आप समझ रहे हो, and proper alchemy create करना. समझ गए हो. तो ये आपका मैसेज है 2023 से. when I am alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. तो उस चीज के कारण थोड़ा सा you could have felt restless and triggers got the better of you, but don't let that happen for you in the 2023. Don't let these people trigger you or your own inner wounds trigger you, क्योंकि जब तक आप में अंदर में inner wounds नहीं है ना, कोई भी बाहर की चीज वो trigger नहीं कर पाएगी. तो focus on your emperor energy. Don't participate in this chaos, rather rise above this chaos. तो ये 2023 आपसे बोलना चाह रहा है. So that is the end of your reading. Do let me know what you feel about the reading, and please like, share and subscribe if you like the video. Please don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I am uploading the video. And please let me know your thoughts. How did you like this conversation of 2023 with you? And I will see you in the next reading. Bye for now.